Pledge. I, Kamaljit, commit to visualize and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Welcome to English literature class. Today, we will read our story from Treasure Traveler, a collection of ICSE poem and short stories. Today, we will discuss about Horse and Hands. Horse and Hand is written by O. Henry. William Sidney Potter was an American writer who wrote under the pen name O. Henry. His short stories are well known for their ready wit, gentle humor and surprise endings. His story Horse and Hand describes the chance encounter on a train between two acquaintances, Miss Fairchild and Mr. Aston. The situation turns awkward when Miss Fairchild notices that Aston is handcuffed to a grim-looking man. The man intervenes to save Aston from embarrassment and prevent the girl from discovering the truth about him. It is only through the observation of the fellow passengers that the reader is made aware of the real nature of the relationship between the two men handcuffed to each other. तो इसमें क्या था, हेड एंड किसके बारे में थी, मिस फेयरचाइल्ड एंड मिस्टर एक्सन के बारे में. इसमें क्या है, मिस फेयरचाइल्ड क्या नोटिस करती है कि एक जेंटलमैन को हैंडकैफ लगी हुई है और वो एम्बेरस होती है इस सब को देख के और उसके बारे में डिस्कवर करना शुरू कर देती है. एट डिवेंजर देयर वाज अ इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स इनटू अ कोच ऑफ द ईस्टबाउंड BMW एक्सप्रेस. In one coach there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. जिसमें क्या देखते हैं, एट डेनवर में वो पैसेंजर कोच में बैठी थी BMW एक्सप्रेस में. इस कोच में क्या देखते हैं, प्रीटी यंग वुमन वेल ड्रेस्ड होती है, पूरी तरह से ड्रेस होती है और लग्जरी कंफर्ट होती है और एक्सपीरियंस्ड ट्रैवल करती है. Among the newcomers were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner, the other a ruffled, gum-faced person, heavily built and roughly dressed. They two were handcuffed together. क्या देखती है उसने, टू न्यू यंग मैन आते हैं. एक तो बहुत हैंडसम होता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बोल्ड होता है, फ्रैंक होता है एंड वेल मैनर्ड होता है. सेकंड क्या होता है, रफ्ट होता है, उसका फेस थोड़ा सा गमी सा लगता है एंड वो रफली ड्रेस्ड होता है. और उन दोनों को क्या होता है, हैंडकफ लगी हुई है, हथकड़ी लगी हुई है इकट्ठों को. एज ए पास डाउन द एसेल ऑफ द काउच द ओनली वैकेंट सीट ऑफर्ड वाज अ रिजर्व्ड वन फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमन. Her the named couple seated themselves. The young woman's glance fell upon them with a distant swift distance, then with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tingling her rounded cheeks, she held out a little grey gloved hand. When she spoke, her voice, full, sweet and deliberate, portrayed that is its honor was accustomed to speak and be heard. तो वो जब वहाँ पे कोच में एंटर करती है तो देखती है कि वहाँ पे मोस्टली रिजर्व सीट होती है. फेस करती है कि एक यंग वुमेन को सीट ऑफ़र करती है. कैसे उसके बारे में पूरा उसका डिस्क्राइब किया गया कि कैसा उसका फेस था, कैसी वो दिखती थी, कैसी वो उसकी आवाज़ थी, उसकी चीक्स कैसी थी, पिंक टिंगलिंग राउंड चीक्स थी, उसके बारे में. व्हेन मिस्टर ईस्टन इफ़ यू मेक me speak first, I suppose I must. Don't you ever recognize old friends when you met them in the West? तो उसने बोला कि मिस्टर वेस्ट, अगर मुझे आप पहले बोलने दोगे तो मैं सपोज करती हूँ कि आप मुझे नहीं पहचान सकते कि मेरे फ्रेंड्स कैसे थे और वो वेस्ट में थे. द यंगर मैन राउज्ड हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, सीइंग टू स्ट्रगल विद द स्लाइट एम्बेरसमेंट विच ही थ्रू ऑफ इंस्टेंटली एंड द क्लैस्प्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड. तो यंग मैन क्या करता है, जब उसकी आवाज़ सुनता है तो थोड़ा क्या होता है,
एम्बेरसमेंट फील होती है उसको देख के कि वो कैसा है, उसकी फिंगर्स में क्या है और उसके लेफ्ट हैंड में क्या है। इट्स मिस फेयरचाइल्ड ही सेड विद अ स्माइल। तो उसने बोला कि ये मिस फेयरचाइल्ड है, उसके फेस पे स्माइल थी। आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड इज अदरवाइज एंगेज जस्ट एट अ प्रेजेंट। तो उसने बोला कि मैं आपके दूसरे हैंड के बारे में पूछ सकती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, वो दूसरी तरफ engaged है। He slightly raised his right hand, bound at the wrist, while a shining bracelet to the left one on his companion। तो उसने क्या किया, अपना राइट हैंड दिखाया तो इस पर रिस्ट पे शाइनिंग ब्रेसलेट था जो कि उसके साथ कंपेनियन के साथ टाई था। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आई स्लोली चेंज टू अ bewildered horror। तो ये सब देख के पहले तो उसको खुशी हुई, जब उसकी आइज़ में स्लोली सा चेंज आने लगा तो वो क्या हो गई, थोड़ा सा डरने लगी। द ग्लो फेडेड फ्रॉम द चीक्स, हर लिप्स पैटर्ड इन अ वीक्यू रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस। तो जब उसने ये सब देखा तो उसकी जो ग्लो फेडेड चीक्स थी वो थोड़ी सी लाइट होने लगी, उसके लिप्स थे वो खुद से ही कुछ पंपिंग करने लगे थे। एंड Easton with a little laugh as if assumed was about to speak again when the other forestalled him. The gum-faced man had been watching the girls contentiously with veiled gleams from his in-shut eyes. तो क्या था, तो उसने क्या किया, उसको अज्यूम कर लिया और थोड़ा सा उसको हंसी आ रही थी कि वो अब उसके बारे में क्या सोच रहेगी। और जो ग्लम फेस था, जो जिसका फेस थोड़ा सा गम से जैसा था, तो वो क्या कर रहा है, उसको देखने लगा और कंटिन्यूसली उसको देखने लगा और उसकी आइज़ थी उसको थोड़ा सा ड्राई। यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग दिस बट आई सी यू आर एक्वेंटेड विद द मार्शल्स हियर। इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी व्हेन वी गेट टू द पेन ही विल डू इट एंड इट विल मेक थिंग्स easier for me. There he is taking me to live in what prison? It's the 7 years for counterfeiting। उसने बोला कि क्या मुझे आप बोलने देंगी, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, ये मार्शल्स क्यों यहाँ पे हैं। और उसने एक वर्ड बोला कि मी व्हेन वी गॉट टू द पेन ही विल डू इट। तो जब मुझे ये पेन देंगे तो वो वैसा कर सकता है। आई विल मेक थिंग्स ईजियर, मैं आपके लिए सभी थिंग ईजियर कर सकता हूँ। ही इज़ टॉकिंग मी टू लिव इन वर्क प्रिजन। तो उसने अपने बारे में बताया कि वो प्रिजन्स के बारे में बताना शुरू करता है। इट्स अ 7 years फॉर काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग मीन्स अ पर्सन हु मेक्स अ कॉपी लुक्स लाइक द ओरिजिनल। तो सेट द गर्ल, तो उसने बोला विद द डीप ब्रीथ एंड रिटर्निंग कलर। तो उसने बोला और उसके जो डीप ब्रीथ लिया और जो उसका फेस का कलर था वो रिटर्न आ गया। सो दैट इट वॉट यू आर डूइंग आउट हियर अ मार्शल। तो उसने बोला कि तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, माई डियर मिस फेयरचाइल्ड सैड ईस्टर्न कामली। तो ईस्टर्न कामली ने थोड़ा आराम से बोला, ईस्टर्न ने कामली बोला, मिस फेयरचाइल्ड आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप स्टेप विद अवर क्राउड इन अ वाशिंगटन। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड वेल अ मार्शलशिप isn't quite as high a position as the ambassador but। तो उसने बोला कि जो मनी है वो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है और जो वो चली जाती है तो मनी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बट जो वेस्ट वाशिंगटन की क्राउड थी वहाँ पे उसने क्या किया था, आई सा द ओपनिंग, उसने खुले वहाँ पे देखा था वेस्ट में किया मार्शल की इज नॉट अ क्वाइट एज अ हाई अ पोजिशन दैट अ एम्बेसडर। तो उसने बोला कि इतनी पोजीशन हाई नहीं होती जितनी की का एम्बेसडर की होती है। द एम्बेसडर सेड द गर्ल वार्मली। तो उसने थोड़ा सा वार्मली बोला, एम्बेसडर डजंट कॉल एनी मोर, हम उसे एम्बेसडर नहीं बोल सकते। ही नीड नॉट एवर हैव डन सो। तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू आउट टू नो दैट, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज़ एंड यू राइड द एंड शूट एंड गो इन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। तो उसने बोला कि आप वहाँ के रियल हीरो, आप राइड कर सकते हो, शूट कर सकते हो, ऑल काइंड डेंजर से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वाशिंगटन्स लाइफ। तो उसने बोला कि ये वॉशिंगटन की लाइफ से डिफरेंट है। यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड। तो आपने पुरानी जो क्राउड थी उसको मिस कर दिया। गर्ल्स आइज फैसिनेटेड वेंट बैक वाइनिंग अ लिटल टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकफ। तो उसने उसकी आइज़ दोबारा फैसिनेटेड होगी, चमक आ गई उसमें। तो उसने देखा कि जो उसके ग्लिटरिंग हैंडकफ
थी, उसकी हैंड कफ बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। डोंट यू वरी अबाउट दैम मीन्स, तो उसने बोला कि आप मेरी हैंड कफ के बारे में वरी मत करो। सेट द अदर मैन, उसने जो दूसरा मैन था उसने बोला। ऑल मार्शल्स हैंडकम देमसेल्व्स टू देयर प्रिजनर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे। तो क्या बोला, जो मार्शल्स होते हैं वो अपने आपको दूसरों के साथ हैंडकफ करके लेके जाते हैं जब उनको किसी दूर की प्रिजन में जेल में शिफ्ट किया जाता है। मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस, तो मिस्टर ईस्टन को अपना बिजनेस पता है। विल वी सी यू अगेन सून इन मिस वॉशिंगटन आस्क्ड द गर्ल, उसने बोला क्या मैं आपको दोबारा से वॉशिंगटन में देख सकता हूँ। नॉट सून आई थिंक सैड ईस्टन, तो उसने बोला नहीं जल्दी नहीं हो पाएगा। माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फेयर, तो उसने बोला कि मेरे जो बटरफ्लाइज डेज थे वो ओवर हो चुकी हैं। आई लव द बेस्ट, तो मुझे बेस्ट ज़्यादा पसंद है। द सर सेट द गर्ल इररेलेवेंटली, हेयर आइज़ वर शाइनिंग सॉफ्टली, तो उसकी आइज़ सॉफ्टली शाइनिंग करने लगी। शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो, तो उसने कार विंडो के बाहर देखा। शी बिगेन टू स्पीक ट्रूली एंड सिंपली विदाउट अ ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, तो उसने विदाउट सच में सच बोलना शुरू कर दिया, सिंपली विदाउट एनी स्टाइल एंड मैनर के साथ। ममा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर, तो उसने बोला कि मैं डेनवर में समर स्पेंड करना चाहती हूँ। ममा एंड आई, तो उसने अपनी ममा एंड अपने बारे में बोला। शी वेंट होम अ वीक अगो बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, तो एक हफ़्ता पहले वो जा चुके हैं क्योंकि उसके फादर जो थे वो बीमार हो चुके थे। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश रहती हूँ। वहाँ कहाँ पे, वेस्ट में। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विद मी, तो उसकी वो लगा कि वहाँ की जो एयर है वो मेरे साथ रहती है। मनी इजंट एवरीथिंग बट द पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड, तो उसने बोला कि मनी सारा कुछ नहीं होती है, बट जो पीपल हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को एंड कुछ stupid things करते हैं। Say Mr. Marshall, growled the gum-faced man, this isn't quite fair. I am needing a drink and haven't had a smoke all day. Haven't you talked long enough? Take me in the smoker now, won't you? I'm half dead for a pipe. तो उसने बोला, से मिस्टर मार्शल को बोला ग्लम्ड फेस मैन ने कि isn't quite fair, ये सब ठीक नहीं है, मुझे कुछ पीने की ज़रूरत है एंड मैंने पूरा दिन में स्मोक नहीं किया है। तो इतना टाइम बात करते करते कि उसको स्मोकर चाहिए, वॉन्ट यू, आपको नहीं चाहिए, तो मैं हाफ डेड हो चुका हूँ विदाउट अ पाइप। द बाउंड ट्रैवलर्स रोज टू देयर फीट ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फाउस, तो जो ट्रैवलर के बीच बॉन्ड था वो और ज़्यादा बाउंड हो गया और उनके फेस पे हल्की सी स्माइल हो गई। आई कैन डिनाई अ पटिशन फॉर टबैको ही सैड लाइटली, तो उसने बोला कि मैं आपकी जो टबैको की पटिशन है उसको इनकार नहीं करता। इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनकम्फर्चुनेट गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, तो इसमें लगा कि जो उसकी वन फ्रेंड है वो अनकम्फर्टेबल होगी, तो उसने मिस फेयरचाइल्ड को गुड बाय बोला। ड्यूटी कॉल्स यू नाउ, और मुझे ड्यूटी बुला रही है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर अ फेयरवेल, तो उसने अपना हैंड हिलाया जैसे कि हम फेयरवेल में हिलाया। इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, शी सैड क्लोथिंग हर सेल्फ विद मैनर एंड स्टाइल, बट यू मस्ट गो ऑन टू लिव एंड वर्क आई सपोज, तो उसने बोला कि ये एक बुरी बात है कि आप ईस्ट में नहीं जा रहे हो और आपको रीक्लोथिंग की ज़रूरत है हर सेल्फ विद द मैनर एंड स्टाइल के लिए, बट यू मस्ट गो ऑन द लिव एंड वर्क आई सपोज, तो मुझे लगा कि आप लिव एंड वर्क कर जाओगे। यस सैड ईस्टर्न, आई मस्ट गो ऑन द लिव एंड वर्क। द टू मैन साइड दैट डाउन द आइसिल इनटू द स्मोकर, तो वो साइड में जाके दोनों ने स्मोक करना। द टू पैसेंजर्स इन अ सीट नियर बाय हैड हियर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, जो वहाँ पे दो पैसेंजर उनकी सीट के पास बैठे थे तो उन्होंने उसकी कन्वर्सेशन सुनी। सैड वन ऑफ दैम, एक ने बोला दिस दैट मार्शल्स गुड शॉट ऑफ जैप, सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट, तो उसने बोला कि उस मार्शल की क्या है गुड शॉट है अपने, और जो वेस्टर्न फेलोज होते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही आस्क्ड अदर, तो उसने बोला कि ये ज़्यादा यंग नहीं है कि ऑफिस के लिए इजंट ही आस्क्ड अदर, उसने दूसरे से पूछा। यंग एक्सक्लेम्ड द फर्स्ट स्पीकर, तो उसने बोला वाई ओ डिडंट यू कैच ऑन, तो आपने उसको नहीं देखा। से डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, उसने कहा कि जो ऑफिसर था उसने हैंडकफ पहनी हुई थी, जो प्रिजनर था उसके राइट हैंड के साथ टाई की हुई थी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरी। इसमें क्या था कि इस स्टोरी में उसने क्या किया था,
एक्सपेक्टर एलिवेशन है किसमें, अबाउट मिस्टर ईस्टन सरप्राइज द रीडर्स। तो द टू पैसेंजर्स ट्रेन रिमार्क मिस्टर ईस्टन इज टू नॉट अ मार्शल, तो उनको क्या लगता है कि बट अ कॉन्टिफिलेटर, कि वो प्रिजनर है, कोई मार्शल नहीं है, ठीक है। The other man who plays an important role in the story is ruffled, glum-faced person. He is heavily built and roughly dressed. Yes, yet he is kind and helpful. But वो kind था and helpful था। Miss Fairchild की story है, most important character है वो, she is the elegant dressed and traveling in a train. तो वो rich थी, materialistic थी and self-centered थी। एंड वो क्या करती है, वो वहाँ से ट्रैवल करती है और उसकी स्टोरी के बारे में पता करती है कि उन सब में क्या हो रहा था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।